So good afternoon, everyone. Welcome to today's webinar on all about women well-being. My name is Snigdha, and I'm honored to be your host for this enlightening session. Today, we have a distinguished guest, Dr. Bharati Dhorepatil, an eminent obstetrician, gynecologist, and IVF expert based in Pune. Dr. Dhorepatil has been recognized with numerous awards and has handled over 500 deliveries successfully. Please join me in giving her a warm virtual welcome. Thank you. Thank you very much. Yes, so now I would like to invite Dr. Dhorepatil to share her insights and much awaited topic discussion on pre-pregnancy, pregnancy, and childbirth. So, Vaishali, yes, ma'am. Yeah. Thank you very much. Good afternoon, all, and welcome to the Medictrl Free Hospital. Thank you very much for this opportunity to share my thoughts. So long, so many years been practicing. So communicate with you all my experience. It's a real pleasure. Thank you so much. And today we are going to actually discuss, or we're going to know about much more about the pregnancy. And I try and see how it is relevant to you to understand the pregnancy. Pregnancy, always we know that we say that pregnancy is like a second birth. It's a second things for the women, which will have a lot of changes in her body. So pregnancy, how do you prepare for the pregnancy? How do you go through the pregnancy? What all changes happens in the pregnancy? And how will you face the childbirth? I have not much elaborated on the childbirth because that will be a separate agenda altogether. So today we are going to cover sort of a prenatal, what all things you should do, and maybe we will cover with the pregnancy changes. So next slide, please. Yes, next slide. So this is, if you see this chart, is a continuum of the care, that is life course. This is what happens during the pregnancy, the women's age. The WHO standardization for actually pre and inter pregnancy care, what one should do. So it starts with the thing that pregnancy तो ऐसी होती है, तो अभी क्या हो, उसमें क्या करना. So pregnancy natural process है, शादी हो गई, फिर चालू हो गया, और फिर प्रेग्नेंट पीरियड में हो गया तो खत्म हो गया, तो फिर आगे, फिर उसके बाद बच्चा होने की हम इसी तरह से सब कुछ. तो no, this is not. Your foundation is very important, and that's what comes the pre-pregnancy. Now pre-pregnancy emphasis is too much because of our lifestyle, hazard lifestyle. Age, at what age you are getting pregnant is completely changing now. So pre-pregnancy has a lot of weightage, because if your foundation is good, naturally the building is going to be good. So foundation is pre-pregnancy or pre-conception care, what all things you should be doing. Then coming the pregnancy. Now pregnancy also, you will be very importantly understanding that 9 months is a period where your baby is building up. It is, you are creating something. So once you know that something has to be created, you have to be very focused and you should be taking care of that creation. And then coming, once there is a birth, then neonatal care and child health, then education, these all things for adolescent period, and these all things keeps on going. So this is what is the WHO says, and it goes back to the adolescent phase, like where she will start again getting prepared for her preconception care. So this is what is the actually continuum of the care. It's a life course for a woman. Next slide, please. Next slide, please. So this is what actually we see, that a critical period of the development has to be understood. Early prenatal care is not enough, but it is many things which happens later on also. So this is what is been actually given in the chart. If you go very carefully, that which weeks of the pregnancy, what happens and what is created. So if you look at the weeks, 4 weeks, 5 weeks, 6 weeks, 7 weeks, 8 weeks, 9 weeks, 10 weeks, 11 and 12 weeks. By 12 weeks, your baby is completely formed. So this happens at say 5 weeks central nervous system, then 6 weeks heart will come,
then 6 or 7 weeks it will come the arms, then it will come the eyes, then comes the legs, then comes teeth, then palate, then external genitalia and the ears. Throughout from 6 weeks till 11 weeks, your ears keeps on forming or the development is happening. तर अशा पद्धतीने सर्व गोष्टी म्हणजे ऑल सब कुछ जो चल रहा है अपने बॉडी में, जो हम अभी बोलते हैं, इसका सबका फाउंडेशन ये वीक्स के हिसाब से होता है। तो इसका क्या मतलब है, आपको क्यों इम्पोर्टेंस है ये चीज का? तो इसका इम्पोर्टेंट ये है कि जैसे सपोज हमने प्रेगनेंसी अभी हो गई हमारी प्रेगनेंसी, तो प्रेगनेंसी के पहले हमें फॉलिक एसिड लेना चाहिए। हमारा वेट अगर ज्यादा है तो उसको रिड्यूस करना चाहिए। हमारे डाइट शेड्यूल्स बहुत अच्छे होने चाहिए। इवन भगवत गीता में भी बोला है कि मोड ऑफ गुडनेस में आप अगर खाते हो, जो सात्विक पदार्थ खाते हो, तो आपका मन भी सात्विक होता है, आप करते भी सात्विक हो, तो आपका अच्छा बच्चा अगर बनना है तो आपको ये बहुत पहले से शुरुआत करनी चाहिए। और जैसे आप ये सब चीजें करते हो, ऑप्टिमाइज करते हो और फिर प्रेगनेंसी में एंटर करते हो, देन थिंग्स विल वर्क बेटर। सो जैसे आप सपोज प्रेग्नेंट रह गए, तो इन केस मेनी टाइम्स पेशेंट्स मेरे पास आते हो, बोलते कि डॉक्टर बाय चांस हम एक्सरे कर चुके हैं, तो अभी हमारे बच्चे को कोई तकलीफ होगी क्या, हमको अबॉर्शन करना पड़ेगा क्या? तो वी शुड नो which stage your x-ray is being exposed, you are being exposed कि तुमको एक्सरे कब निकाला था। सपोज आपने एक्सरे 4 वीक्स या 3 वीक्स में निकाला हो, 5 वीक्स के पहले ही निकाला हो, तो प्रोबेबली उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको, क्योंकि तब तक तो कुछ डेवलपमेंट हुई ही नहीं है। बट अगर सपोज यही एक्सरे आप जैसे 1.5 महीना हो गया, 2 महीने हो गए, तब आप करते हो, तो शायद आपको सेंट्रल नर्वस सिस्टम देखना जरूरी है, जैसे ब्रेन है। और सेकेंडली हार्ट देखना बहुत जरूरी है। पर अगर सका लिम्स के डिफेक्ट है, जैसे थैलेरोमाइड ऐसे एक मेडिसिन था जिसमें लिम्ब डिफेक्ट ज्यादा दिखते थे, तो ऐसे अगर चीजें तुमने 4 वीक्स 5 वीक्स में लिए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट 6 7 वीक्स 8 वीक्स में किए हैं तो डेफिनेटली इसमें फर्क पड़ेगा। सो इसके हिसाब से आपने देखना चाहिए कि पहला जो 12 हफ्ते का जो पीरियड है, जो टाइम पीरियड है प्रेगनेंसी का, वो बहुत बहुत क्रूशियल टाइम पीरियड है, बहुत क्रूशियल। तो इसमें आपने बहुत संभल के गोली लेनी चाहिए, संभल के रहना चाहिए, और 12 वीक्स को आपने बहुत इंपॉर्टेंस देना चाहिए कि ये तुम्हारा फाउंडेशन है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सो विद दिस, ये जो अगर हम करते तो हम क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं, लाइक ये क्या रिस्क फैक्टर्स है, ये हमको समझना जरूरी है। न्यूट्रिशनल कंडीशन हमारी बहुत अच्छी होनी चाहिए। जब हम प्रेगनेंसी का प्लान करते हैं तो हमने वैक्सीन जो है वो प्रिवेंटेबल वैक्सीन है, वो पहले लेने चाहिए। अभी कौन से प्रिवेंटेबल वैक्सीन होते हैं, तो वेरी इंपॉर्टेंटली रूबेला वैक्सीन। सो रूबेला वैक्सीन हमें पहले ही कंप्लीट करके लेना चाहिए। तो अगर नहीं किया आपने तो हो सकता है कि प्रेगनेंसी में हम नहीं ले सकते, बट रूबेला इन्फेक्शन अगर हो गया तो बेबी को एनोमलीज आ सकते हैं। अगर हमारे जेनेटिक कंडीशंस जो है, सपोज हमारे घर में किसी को थैलेसीमिया है या हमारे थैलेसीमिया ट्रेट चल रहा है, तो इसको पहले से समझना चाहिए कि हम कैरियर है क्या। तो वो सब इन्वायरमेंटल हेल्थ इज इम्पोर्टेंट, लाइक तुम कहाँ पे रह रहे हो, किस जगह पे हो, क्या एक्सपोजर्स हो रहे हैं आपको। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मेल्स होते हैं, जैसे मेल पार्टनर होता है, जैसे पति हो आपका, लेकिन वो ऐसे जगह पे काम कर रहा है जहाँ पे बहुत हीट है, और उसका काम ही वहीं पे है कि वो बहुत हीट को एक्सपोजर करता है। जब भी हीट को अगर एक्सपोजर करता है तो उसके स्पर्म्स एब्नॉर्मलिटी ज्यादा होती है, तो उसने हो सकता है कि प्रोटेक्शन लेना चाहिए या देखना चाहिए कि प्रेगनेंसी के पहले वो कैसे चेंज करे उसको। हमको फीमेल जेनाइटल म्यूटेशन हो सकता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन हो सकता है, या टोबैको यूज कर रहे तो वो हमको निकालना चाहिए अपने इसमें से। हमें मेंटल हेल्थ बहुत अच्छी रखनी चाहिए। अगर सपोज कोई इन्फेक्शन है हमको, तो वो पहले ही देखना चाहिए जैसे हम उससे निकल जाए और फिर हमारी प्रेगनेंसी रह जाए। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो जैसे अगर प्रेगनेंसी रहती है तो चेंजेस क्या आते हैं हमें, जैसे हमको अभी प्रेगनेंसी रह गई तो हमको चेंजेस क्या आ सकते हैं। तो यूट्रस ग्रो होता है, तो कितना ग्रो होता है, तो ऑलमोस्ट 3 टाइम्स to 4 टाइम्स यूट्रस ग्रो होता है। उसका वेट इंक्रीज होता है ऑलमोस्ट 900 ग्राम्स। जैसे 1 किलो का जैसे आप मुट्ठी पकड़ो, आपकी मुट्ठी है, ये मुट्ठी इतना तुम्हारा यूट्रस होता है,
वो ऑलमोस्ट 2 वाटरमेलन के जैसे यूट्रस होता है, तो इसका वेट भी बहुत बढ़ता है उसको, तो इसको बोलते हैं हाइपरट्रॉफी होती है। वो हाइपरट्रॉफी होती है बिकॉज ईस्ट्रोजन में सेल्स इंक्रीज होते हैं, इसलिए वो बड़ा होता है। एंड नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होते हैं, ये ईस्ट्रोजन जब बढ़ता है प्रेगनेंसी में, इसके कारण वो नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते हैं, तो इसलिए वो यूट्रस आपका बढ़ता है। तो ये सब एनाटॉमिकल चेंजेस अपने बॉडी में आते हैं। अपना पेल्विस बदलता है, पेल्विक फ्लोर मसल्स बदलते हैं, यूट्रस बदलता है, यूट्रस के लिगामेंट भी बदलते हैं, क्योंकि उसको होल्ड करना चाहिए ना प्रेगनेंसी को, तो यूट्रस के लिगामेंट्स भी टाइट होते हैं, बड़े होते हैं और लंबे भी होते हैं। आपका बच्चादानी का मुंह बदलता है, क्योंकि ये थोड़ा धीरे 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 करके प्रेगनेंसी का, डिलीवरी का प्रिपरेशन चालू करता है। प्लासेंटा होता है, एमनियोटिक फ्लूइड होता है, ये 2 चीजें एक्स्ट्रा आती है आपके प्रेगनेंसी में, तो वो कैसे अकोमोडेट होती है, कैसे आपको समझना चाहिए उनको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट लाइन। So this is how it happens. You see, look at the uterus, how वो big uterus होता है। अभी आपने अगर देखा हो, आपको पता चले, एक वहां पे राउंड लिगामेंट ऐसे लिखा है। अभी ये राउंड लिगामेंट जो होता है, वो राउंड लिगामेंट एक्चुअली 1 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर का होता है इनिशियली, बट आप इसमें देख सकते हैं वो ऑलमोस्ट 10 सेंटीमीटर होता है, इतना बड़ा। तो ऐसे वो ब्रॉड लिगामेंट, राउंड लिगामेंट, ये सब होल्ड करते हैं यूट्रस को। तो ये जो होल्ड करते हैं, तो उनको तो बढ़ना ही चाहिए, बिकॉज उसको, उनको वो यूट्रस को कंटिन्यूअसली ऐसे सस्पेंडेड करके रखना पड़ता है। और इसीलिए बहुत सारे पेशेंट बोलते हैं हमको ना बहुत खिंचाव लग रहा है, हमको बहुत दर्द हो रहा है। तो ये सब चीजों के लिए हम मेडिसिन नहीं दे सकते, क्योंकि ये फिजियोलॉजिकल चेंज है, ये चेंज होना ही है। ये स्ट्रेच होता है, इसके कारण वो थोड़ा अनकंफर्टेबल फीलिंग हो सकता है। तो ये सब चेंजेस होते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। अभी सेम चीज आपने देखा है, पेल्विस, पेल्विस ये गर्डल होता है, ये पेल्विस के अंदर से डिलीवरी होती है। अभी ये पेल्विस डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का पेल्विस होता है, हर एक लेडी का पेल्विस अलग होता है, और ये पेल्विस ऑल्सो उसके हिसाब से चेंज होता है। अगर आपने देखा तो उसको जॉइंट्स है, तो ये जॉइंट्स, रिलैक्सिन नाम का हार्मोन होता है, वो प्रेगनेंसी में ज्यादा आता है, तो वो रिलैक्सिन, वो रिलैक्स करता है, और वो रिलैक्स करता है, इसलिए आपकी प्रेगनेंसी वहां पे सर वगैरह जो बस बैठता है ना अंदर, वो अकोमोडेट हो सकता है उसमें। सो दिस इज ऑल द चेंजेस हैपेंस इन दी पेल्विस आल्सो। नेक्स्ट लाइन। तो नेक्स्टली हमको ये भी इफेक्ट्स दिखना चालू होते हैं कि जैसे पेल्विक टिल्ट होता है, या हमारा जो पोजीशंस होते हैं वो पोजीशंस बदलती है, या हमारे जैसे कि अगर सपोज आप एरोबिक्स वगैरह ले रहे हो या एक्सरसाइज कर रहे हो, तो आपको पता चलना चाहिए कि आपको लोअर या लिमिटेड स्टेप्स लेने चाहिए, या रैपिड लेग अबडक्शन नहीं करना चाहिए, ब्रेस्ट स्ट्रोक्स नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ब्रेस्ट को आपको हैंडल नहीं करना चाहिए प्रेगनेंसी में। तो ये सब प्रेगनेंसी है, और प्रेगनेंसी के हिसाब से आपको अगर फिटनेस रखना है, तो ये अंदर की जो चेंजेस हुए हैं उसके साथ हमने ये सब टैली करके रखना चाहिए प्रेगनेंसी में। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। क्योंकि बॉडी में ना ये चेंजेस होते हैं कि जैसे 3 प्रेग्नन्सी के टप्पे होते हैं। पहिला टप्पा होता है की पहिला 12 म्हणजे आठवड्यापर्यंत आपल्याला पहिला टप्पा, त्याला फर्स्ट ट्रायमेस्टर, दैट इज कॉल्ड फर्स्ट, जो फर्स्ट मंथ से लेके 12 वीक्स तक मींस 3 मंथ्स का होता है। दूसरा जो टप्पा है उसको सेकंड ट्राइमेस्टर बोलते हैं। दिस इज फ्रॉम सेकंड टू इट गोज टू 6 मंथ्स, 6 months, that is called second trimester, and third trimester जब 6 months से लेके 9 months तक जाते हैं आप। So first trimester में क्या होता है, baby begins to grow, then urine ज्यादा आना चालू होता है, skin को changes आने चालू होते हैं, thickening of the waistline जो बड़ा लगने लगता है, या nausea fatigue बहुत होता है। तो वो पहले ट्राइमेस्टर, फर्स्ट 3 months में ये चेंजेस दिखते हैं। सेकंड ट्राइमेस्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसके बाद में वो बढ़ना चालू होता है, तो बेबी का वेट बढ़ना चालू होता है, एनर्जी लेवल बढ़ती है, क्योंकि बेबी को, और बेबी का मूवमेंट होना चालू होता है, बेबी जरा बड़ा होता है, उसका डिमांड भी बढ़ता है। तो उस बिकॉज ऑफ दैट हार्ट बर्न होते हैं, लेग क्रैम्प्स हो सकते हैं, या पेल्विक में डिस्कम्फर्ट हो सकता है, जैसे आप बैठ नहीं सकते बहुत देर तक, या स्ट्रेट नहीं रह सकते, या हम जल्दी से कुछ चीजें नहीं उठा सकते, ये सब चीजें हो सकती है ये सेकंड ट्राइमेस्टर में। थर्ड ट्राइमेस्टर में और भी बेबी
जोर से और बहुत रैपिडली ग्रो करता है। बिकॉज बेबी रैपिडली ग्रो करता है तो नेचुरली आपके बैक के ऊपर स्ट्रेन होता है, बिकॉज इट इज लाइक अ लॉर्डोसिस होता है। जैसे बेबी का वेट इतना बढ़ता है तो आपका नेचुरली स्पाइन्स पीछे की तरफ जाते हैं, और बिकॉज ऑफ दैट यू स्टार्ट गेटिंग द बैक एक एंड स्वेलिंग्स ऑन द लेग्स, हैंड्स। कभी कभी ब्रेथलेसनेस होता है बिकॉज इट इज कंप्लीटली कमिंग अप टू द चेस्ट लेवल द प्रेगनेंसी लास्ट। तो ये सब, और यूरिन भी ज्यादा होने लगती है। ये सब चेंजेस first 3 trimester, first trimester, second trimester, and third trimester, you will see all these changes happening in her body. What is the importance for this saying like this is the whole family should understand she is going through these all things. They should not say अरे ये तो बहुत ही बार यूरिन के लिए जाती है, बार बार बोलती है हार्ट बर्न होता है, ये बैकी की बोल रही है। तो मैं हमेशा पेशेंट्स को बोलती हूँ, अगर पेशेंट के रिलेटिव या हस्बैंड ऐसे बोलता है तो मैं बोलती हूँ आप कभी भी 3 किलो का सैंड बैग आपके पेट के ऊपर बांधिए और देखो आप डे टू डे एक्टिविटी करके कितना डिफिकल्ट होता है। सो ये इतनी डिफिकल्टी, इतनी चेंजेस होते हैं बॉडी में कि प्रेग्नेंट पेशेंट को हमें बहुत अच्छी तरह से समझना चाहिए। इसके बावजूद भी उसके इमोशनल इतने डिमांड्स होने चालू होते हैं, या शी स्टार्ट्स फीलिंग वेरी नर्वस, शी डजंट नो व्हाट इज टू बी डन, हाउ द फ्यूचर विल बी। सो family support is very, very important during this pregnancy status of her. Next slide. उसके साथ में हम जैसे डॉक्टर के हिसाब से आप देखो तो उसके सर्कुलेटरी चेंजेस में फर्क पड़ना चालू होता है। उसके थर्मो रेगुलेशन मीन्स लाइक ठंडी या गर्मी लगना, इसमें रेगुलेशंस कम ज्यादा होता है। मेटाबॉलिज्म में फर्क पड़ता है, जैसे आपने खाना खाया तो आपका कैसे सुबह में खाना खाया तो 1-2-4 घंटे के बाद में अपना मेटाबॉलिज्म होके आप यूरिन मोशन पास कर सकते हो आराम से। इसको हो सकता है कि टाइम लगे क्योंकि वो बहुत स्लो जाता है, उसको टाइम लगता है। कभी कभी रेस्पिरेटरी चेंजेस भी होते हैं, जैसे ब्रेथलेसनेस वगैरह होना, या डाइजेस्टिव सिस्टम थोड़ा सा, यूरिन, स्किन, ब्रेस्ट, सब में चेंजेस आते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो प्रेगनेंसी में द मैटरनल ऑर्गन सिस्टम इज रिस्पॉन्स टू प्रेगनेंसी। तो हमें समझना चाहिए कि वुमेन या होल फैमिली ने इसके लिए तैयारी रखनी चाहिए और ये अकोमोडेट करना चाहिए और उसको डिलीवरी के लिए तैयार रखना चाहिए। तो उसके ऑर्गन्स भी अलग अलग तरीके से, ऑर्गन्स भी डिफरेंट डिफरेंट फेजेस में जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। जैसे कि उसका हार्ट, जैसे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, फिर लंग्स, देन जेनाइटल ऑर्गन्स में नीचे का यूरिन और ये जगह, या एंडोक्राइन सिस्टम, जीआई सिस्टम मींस वो इंटेस्टाइन का सिस्टम, एंड स्किन, इस सब में चेंजेस आना चालू हो जाता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो ये ऑल्ट्रेशन किस वजह से होता है, ये सब चीजें जो बदल जाती है ये किस वजह से होती है, तो हार्मोनल बैलेंस पूरा बदल जाता है। बहुत सारे हार्मोन्स एक साथ बॉडी में आ जाते हैं और इसके कारण ये सब चेंजेस होता है। उसका सर्कुलेशन में भी चेंज होता है और मेटाबॉलिज्म, बिकॉज इतना ब्लड सप्लाई लाने की जरूरत है कि ये क्रिएशन हो रहा है, उसके बॉडी में एक क्रिएशन हो रहा है। तो ये सब चीजें डिमांड में होनी चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं बोलती हूँ कि कोई भी फैक्ट्री में अगर सपोज बहुत बड़ा बजटेड आपको ये आया, ऑर्डर आ गई, तो जैसे वो अगर सपोज ऑर्डर आ गई तो सब लोगों को सब प्रिपरेशन करना पड़ता है। वैसे ही प्रेगनेंसी ये बहुत बड़ी ऑर्डर है और ये ऑर्डर के हिसाब से बॉडी चेंजेस करना चालू कर देती है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो ये हार्मोन्स कौन से होते हैं कि जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो पहला हार्मोन है ईस्ट्रोजन। ये ईस्ट्रोजन क्या करता है, तो कॉर्पस ल्यूटियम करके जो ओवरी में एक सेल होता है, जैसे एग फूटता है के बाद में जो तैयार होता है वो प्रोड्यूस करता है और ये 12 हफ्ते तक उसको सपोर्ट करता है। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये यूट्रस और ब्रेस्ट दोनों को भी डेवलप करने में मदद करता है। दूसरा हार्मोन है, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। दूसरा हार्मोन है प्रोजेस्टेरॉन, इसको बोलते हैं प्रो फॉर प्रेगनेंसी, प्रोजेस्टेरॉन मींस प्रो फॉर प्रेगनेंसी, ये जरूरी है प्रोजेस्टेरॉन। सो मेनी टाइम्स डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब यू प्रोजेस्टेरॉन की टैबलेट ले लो, तो हमको लगता है क्या क्यों टैबलेट लेने की, ये गलत तो नहीं हो रहा है। नो, दिस ऑलवेज सपोर्ट्स योर प्रेगनेंसी, डजंट हार्म यू एट ऑल, इट
supports the pregnancy, it relaxes the smooth muscle, it inhibits the uterine contraction, वो quiet करता है uterus को, and ये बहुत important regulates the storage of body fat, जो हमारा store हुआ है body fat का, वो right time में इस्तेमाल करने के लिए, वो regulation करने के लिए ये हार्मोन बहुत important होता है. Next slide please. तीसरा हार्मोन है ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन, HCG ऐसे इंजेक्शन बोलते हैं. सो मेनी टाइम्स वी गिव आवर पेशेंट्स HCG इंजेक्शन. तो ये क्या करता है? ये HCG इंजेक्शन आपका प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है, ये रिजेक्शन नहीं होने देता. तो ये HCG क्वाइटन्स योर यूट्रस एंड ये ऑटो इम्यूनिटी मींस योर खुद की इम्यूनिटी बढ़ाते हैं कि चलो इसको ले लो, आप इसको बड़ा करने दो, उसको बड़ा होने दो. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है, इसलिए हम HCG का इंजेक्शन every week, once in a week or once in a twice in a week ऐसे दे देते हैं. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. फिर चौथा हार्मोन है वो ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन. ये जो बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है, ये बेसिकली आप हम जो खाना खाते हैं जो उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, हम जो खाना खाते हैं वो ग्लूकोज में जाता है, और जो ग्लूकोज जाता है वो फीटस तक पहुंचाने का काम ये ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन करता है. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. और ये नेक्स्ट स्लाइड. तो ये नो दिस प्रीवियस स्लाइड, सॉरी प्रीवियस स्लाइड. तो ये सब चीजें जब हो जाती है तब एक बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है जो आपके शरीर में सिक्रेट होता है प्रेगनेंसी के ड्यूरिंग, उस कॉल्ड रिलैक्सिन. ये इतना इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, ये हार्मोन है कि इसकी वजह से तुम्हारी प्रेगनेंसी आगे बढ़ती है. जब तक प्रेगनेंसी ये रिलैक्सिन हार्मोन नहीं होता तब तक आपके जॉइंट्स लूज नहीं हो सकते, और जब तक ये जॉइंट्स लूज नहीं होंगे तब तक प्रेगनेंसी कैसे अकोमोडेट होगी. इतना बड़ा यूट्रस, जैसे ऑलमोस्ट 3 to 4 टाइम्स का यूट्रस अकोमोडेट नहीं हो सकता. तो रिलैक्सिन हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट है. तो पेशेंट मुझे कभी कभी पूछते कि मैडम मुझे जब भी कभी मैं ये साइड से ये साइड टर्न होती हूँ तो बहुत जोर से चमक आती है. ये दिस इज अ वेरी कॉमन सिम्टम पेशेंट से. देन वी टेल द पेशेंट दैट बिकॉज ऑफ योर प्रेगनेंसी यू हैव बीन सिक्रेटिंग रिलैक्सिंग हार्मोन. ये रिलैक्सिंग हार्मोन तुम्हारे जॉइंट्स को अनस्टेबल करता है. ये करना ही चाहिए एक्चुअली प्रेगनेंसी के लिए, बट बिकॉज ऑफ दैट व्हेनेवर यू आर मूविंग फ्रॉम वन एंगल टू अनदर एंगल इट इमीडिएटली लाइक चमक के जैसे लगता है. तो यू हैव टू कीप स्लोली मूविंग टू वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन. दिस इज व्हाट यू हैव टू डू अंडरस्टैंड बाय रिलैक्सिंग हार्मोन. नेक्स्ट स्लाइड. So we have seen that now these are all changes happens in the body system in the first trimester, second trimester, third trimester. So we have to be careful because so many hormonal changes are happening in her body. So next slide please. So the same way I said this is a cardiovascular system. तो इसमें heart rate बढ़ जाता है और यूट्रस कंप्रेस करता है ब्लड वेसल्स को, इसलिए वो रिड्यूस वेनस सिस्टम होती है, इसलिए आपको पैरों में कभी कभी इडिमा आता है, स्वेलिंग आती है, ये सब चीजें होती है. टोटल बॉडी वाटर चेंज होता है और ज्यादा हो जाता है. नेक्स्ट स्लाइड. सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो सिस्टम जो ब्लड की सर्कुलेशन होता है. नेक्स्ट स्लाइड. सर्कुलेशन सिस्टम जो होती है वो सिस्टम सब बदल जाती है. यू सी योर वेसल्स, ये जो एक शीर होती है ना, बोलते हैं उसको वेन, ये ऑलमोस्ट 4 टाइम्स बड़ी होती है प्रेगनेंसी में. तो वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हेन सपोज अ पेशेंट एट द टाइम ऑफ डिलीवरी कम्स एंड शी स्टार्ट ब्लीडिंग, that will be a havoc. It will bleed like a tap because that vessel has increased to almost 4 times. So वो blood supply बहुत quickly, जैसे आप टैप ओपन किया, आपका छोटा टैप है तो छोटा छोटा पानी का प्रवाह जाएगा, और आपका बड़ा टैप है तो आप ठक से आपकी टंकी खत्म हो जाएगी. Exactly like that happens because of the pregnancy circulatory system which is being completely changed. Next slide please. तो ब्लड वॉल्यूम बढ़ता है, कार्डियक आउटपुट बढ़ता है, इसलिए आपको दम लगता है. स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ता है, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम बढ़ता है, रेस्टिंग पल्स आपकी बढ़ जाती है, एंड प्लाज्मा लेवल मींस ब्लड प्लाज्मा भी बढ़ता है. क्या डिक्रीज होता है? ब्लड प्रेशर डिक्रीज होता है, ब्लड सप्लाई टू द यूट्रस, कार्डियक रिजर्व, वैस्कुलर रेजिस्टेंस और हेमाटोक्रिट, ये सब चीजें उसकी कम होती है प्रेगनेंसी में. नेक्स्ट स्लाइड. I think this we covered because hemoglobin stays and the decrease of hematocrit होता है. Next slide.
ये ऐसी चीज होती है, जैसे ये हम बहुत बार पेशेंट्स को बोलते हैं कि जैसे आप एक साइड पे टर्न होके ज्यादा से ज्यादा सो जाए, ये राइट और लेफ्ट. व्हाई दिस हैपेंस? बिकॉज सपोज इफ यू आर स्लीपिंग फ्लैट ऑन योर बैक, uterus is already so heavy. In that, there is a baby is also heavy, and that whole things will compress because the spines are below. आप देख सकते हो वो spine, और इसके बीच में आपकी जो सबसे बड़ी वेसल्स होती है उसको बोलते हैं वेना कैवा, ये compress होना चालू करती है, and because of that many a times baby may suffer or you may start getting a edema on the legs. So we always tell to sleep on one side or the other side to get the better outcome. Next slide. ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है कि टोटल बॉडी वाटर का क्या होता है अपने बॉडी में जब प्रेगनेंसी होती है. तो टोटल बॉडी वाटर इंक्रीजेस 6 to 8 लीटर्स एंड 40% ज्यादा हो जाता है, एंड 2/3 इज इंट्रासेल्युलर एंड 1/3 इज एक्स्ट्रासेल्युलर, एंड very importantly we should understand 3/4 interstitial, and so that means the whole body में वाटर कंटेंट ज्यादा होता है. तो अभी इसका आपके लिए क्या मतलब है? जैसे पेशेंट्स आते हैं वो बोलते हैं मेरे हाथों में मूंगी आ रही है, बहुत मूंगी आ रही है डॉक्टर, इसको मैं बिल्कुल होल्ड नहीं कर पा रही. इज बिकॉज ये इंट्रावेस्कुलर इंटरस्टिशियल सब जगह पे ये पानी जाके रहता है. इट इज लाइक अ कुशनिंग. तो नेचर ने आपको कुशनिंग किया है सब जगह से, तो ये इसको समझना जरूरी है. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. So all these changes, we saw that it all happens. We can go to next slide. With these all actions and all changes, what happens? Next slide. Yes, next slide, please. हमको एनीमिया होने के चांसेस, मीन्स हीमोग्लोबिन कम होने के चांसेस होते हैं प्रेगनेंसी में. ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि प्रेगनेंसी में हीमोग्लोबिन लेवल एक जगह पे आके रुकनी चाहिए, उससे नीचे नहीं चाहिए. अगर आपका हीमोग्लोबिन कम हो तो आपको मालूम है थोड़ा भी ब्लड लॉस आपको बहुत बड़ी हानि कर सकता है. तो एनीमिया करेक्ट करना एट मोस्ट इंपॉर्टेंट इन दी ड्यूरिंग कंप्लीट प्रेगनेंसी. सो कभी भी अगर डॉक्टर तुमको बोलता है कि आपको खून की कमी है, आपको इंजेक्शन लेना चाहिए या ब्लड ट्रांसफ्यूजन लेना चाहिए, आप कभी ना मत बोलो, बिकॉज आपके शरीर पे बहुत सारा डिमांड है और ये डिमांड फुलफिल करने के लिए हमको ये सब करना जरूरी होता है. सो नेक्स्ट स्लाइड. सो ये आयरन की रिक्वायरमेंट जिस तरीके से होती है उसके हिसाब से हम एवरेज निकालते हैं और उसके हिसाब से आपको इंजेक्शंस या ब्लड ट्रांसफ्यूजन या जिससे आपका हीमोग्लोबिन बढ़े. नेक्स्ट स्लाइड. नाउ कमिंग टू योर लंग्स. लंग्स को क्या होता है? तो लंग्स को जैसे जैसे आपका प्रेगनेंसी बढ़ता जाता है वैसे वैसे मैकेनिकली आपका डायफ्राम ऊपर ऊपर होना चाहिए. तो आपके लंग्स की कैपेसिटी बहुत कम होती है, वो जगह कम होती है, इसके लिए आपको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होता है. आप कितनी बार पेशेंट बोलते हैं दम लगता है डॉक्टर, बीच में ही हमको दम लगता है. तो दम क्या लगता है? बिकॉज तुम्हारा लंग्स मीन्स थोरैक्स की कैपेसिटी कम हुई है, एंड बिकॉज ऑफ दैट कैपेसिटी योर ब्रेथ. तो नेक्स्ट स्लाइड. कैपेसिटी कम हो जाती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होता है, रिजर्व कम होता है, मसल सोरनेस ज्यादा बिकॉज यू आर ब्रीदिंग मोर, तो वो पेन होता है, और बिकॉज ऑफ दैट ब्रीदिंग वो हाइपर वेंटिलेशन, लाइक बहुत बार तुम ज्यादा सांस लेते हो तो वो ज्यादा सांस लेने में आपको ये सब तकलीफ होती है. इसलिए प्रेग्नेंट पेशेंट को हमेशा, जैसे हम बोलते हैं अपराइट बैठ हो, ज्यादा पीठ में ऐसे थोड़ा सा सपोर्ट लेके बैठा करो आप. और जब भी कभी आपको लगता है कि ज्यादा सांस फूल रही है तो डॉक्टर को आके डेफिनेटली मिलो. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. क्योंकि आपका ऑक्सीजन कंजम्पशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना आप ऑक्सीजन दोगे उतना अच्छी तरह से बेबी बढ़ेगा अंदर. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. तो ये हम सब ऑक्सीजन सैचुरेशन वगैरह जो बोलते हैं और करते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ऑक्सीजन इज एक्चुअली द लाइफ सपोर्ट फॉर द प्रेगनेंसी और द बेबी. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. सो उसके बाद में एक बहुत इंपॉर्टेंट चेंज अभी होता है, वो जीआई ट्रैक, लेके तुम्हारा डाइजेशन, वो जो डाइजेशन हमारा बहुत ही, नेक्स्ट स्लाइड, और डाइजेशन बहुत ही हमको इम्पोर्टेंट होता है. सो इसमें क्या होता है कि ये नॉशिया, वॉमिटिंग, हार्ट बर्न, या हमको मोशन नहीं होता, कॉन्स्टिपेशन होता है, ये सब चीजें चेंजेस होना चालू हो जाते हैं प्रेगनेंसी के कारण. सो ये सब हमको, नेक्स्ट स्लाइड,
ये सब हमको बिकॉज हमारा इंटेस्टाइन, स्टमक सब डिस्प्लेस होता है, बिकॉज तुम्हारे पेट का जो इंटेस्टाइन की जगह थी पूरी की पूरी, वो सब अभी यूट्रस ने ले लिया है। तो ये सबको शिफ्ट करता है, यहाँ वहां सब शिफ्ट करता है। वो तो शिफ्ट करता है इसलिए उनमें चेंजेस आना चालू हो जाते हैं। तो इसको अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो ये आपका डाइजेस्टिव सिस्टम स्लो हो जाएगा, तो आपको, आप खाना खाते हो तो स्लो डाइजेस्ट होगा, आप इमीडिएटली दूसरा डाइजेशन नहीं, दूसरा फूड का सेकंड अटेम्प्ट नहीं ले सकते, या आपको हार्टबर्न होने के चांसेस होते हैं, या कॉन्स्टिपेशन होने के चांसेस होते हैं, या मॉर्निंग सिकनेस होने के चांसेस इसकी वजह से होते हैं। सो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो अभी जैसे मैंने लास्ट बोला कि जैसे बीएमआर भी बढ़ता है, कि जैसे आपका मेटाबॉलिज्म अगर होता है तो वो सब डिमांड के कारण ये सब चीजें बढ़ना चालू होती है, तो इसलिए आपका वेट गेन भी होना जरूरी है। सो प्रेगनेंसी में हर एक डॉक्टर के पास आपने देखा हो, ब्लड प्रेशर देखते हैं, वेट देखते हैं आपका, और वेट के हिसाब से डॉक्टर बोलता है कि आप ओवरवेट हो रहे हैं, अंडरवेट हो रहे हैं, आपको कितना जाना चाहिए। ये सब चीजें इसके लिए, क्योंकि ये तुम्हारा बेजल मेटाबॉलिक रेट बोलते हैं उसको, वो इंक्रीज होता है, तो इसके लिए आपका वजन बढ़ना भी जरूरी होता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो बिकॉज अगर सपोज मेटाबॉलिक चेंजेस होते हैं तो इसमें ये सब हॉर्मोन्स के भी चेंजेस होते हैं, इसलिए उसको बढ़ना जरूरी होता है। वैसे लास्ट अभी नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। आपका नीचे की जगह होती है, उसमें भी चेंजेस आना चालू होते हैं, वजाइना, पेरिनियम, वल्वा, इनको इंक्रीज व्हाइट डिस्चार्ज ज्यादा होना। ये पेशेंट बहुत बार बोलता है कि डॉक्टर पहले तो मेरे को व्हाइट डिस्चार्ज इतना नहीं था, अभी बहुत हो रहा है। तो ये क्यों हो रहा है? बिकॉज ये सिक्रेशंस बढ़ते हैं वहां पे, वो वजाइनल लेंथ बढ़ती है, ये सब चीजें डिलीवरी के लिए तैयारी चल रही है आपकी, वो धीरे 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 ये डिलीवरी के लिए तैयारी चालू होती है, इसी के कारण ये सब जेनाइटल ऑर्गन। नेक्स्ट स्लाइड। तो ये नेक्स्ट सर्विस चेंजेस होते हैं। जैसे कि बच्चा दानी का मुंह तैयार होना चालू होता है प्रेगनेंसी के लिए, उसकी सब वैस्कुलरिटी बढ़ जाती है, म्यूकोसा आता है उसका, या उसके ग्लैंडुलर फंक्शन होते हैं, ये सब तैयारी होती है पहले ही, आपके डिलीवरी पहले ये चलता है। आप होती है, डॉक्टर को पूछना चाहिए, और उसको बहुत सारा मेडिसिन नहीं लेके जो फिजियोलॉजिकल नॉर्मल है उसको एक्सेप्ट करना जरूरी है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो वैसे ही 20 वीक्स के बाद में आपको मालूम है, जैसे फर्स्ट ट्राइमेस्टर में इतना हो गया तो 20 वीक्स में तो और भी बढ़ेगा, क्योंकि ये सब डिमांड ऐसी ही चलती रहेगी। नेक्स्ट स्लाइड। सो दिस इज द वे यूट्रस का साइज बढ़ता जाता है, आप देख रहे हो ये इतना छोटा मुट्ठी के जैसा होता है, वो धीरे 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 वाटरमेलन, डबल वाटरमेलन के साइज का आपका यूट्रस हो जाता है। तो इसकी वजह से आपको ये सब चेंजेस आने चालू हो जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सो ये इसके मसल फाइबर्स भी बढ़ जाते हैं, और ये पूरा का पूरा चेंजेस हो जाता है। नेक्स्ट स्लाइड। अभी वी गो टू द लास्ट वन which is actually kidney, urine. Next slide. वो यूरिन सिस्टम जब, नेक्स्ट, ये सब एक्चुअली वी हैव टॉक्ड, वी हैव ये रिपीटेशंस हैं। नेक्स्ट, हाँ यस, रीनल सिस्टम एंड यूरिनरी सिस्टम, करेक्ट। सो ये बहुत सारे पेशेंट्स हमको बोलते हैं कि हमको बहुत बार यूरिन जाना पड़ता है, क्या हमने ख्याल रखना चाहिए? बिकॉज तुम्हारा ब्लैडर कॉम्प्रेस होता है, यूट्रस के साथ तुम्हारा ब्लैडर कॉम्प्रेस होता है, तो उसकी कैपेसिटी टेम्परली कम होती है। तो तुमको अगर सपोज 500 सीसी का अगर कैपेसिटी है अपना, 250 टू 300 सीसी का अगर कैपेसिटी है, तो आप उतनी कैपेसिटी से वो ब्लैडर भरने नहीं दे सकते। कि जैसे आपको 2 घंटे के बाद में अगर यूरिन को जाना है, तो प्रेगनेंसी में हो सकता है कि हाफ एन आवर में ही आपको जाना पड़ेगा, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं, ये यूरिन इन्फेक्शन नहीं है, ये नेचुरल प्रोसेस है, इसके कारण ये सब हो जाता है। सो नेक्स्ट स्लाइड। सो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज।
So this is urinary changes. Next slide. हो जाते हैं तो ये अभी ऐसे हो जाता है कि जैसे आपका थर्मोरेगुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है प्रेगनेंसी में। ये इंपॉर्टेंट चीज होती है कि जो हमारी थर्मोरेगुलेशन से आपको पता चलता है कि कैसे आपने ये हीट और ये स्वेट ये सबका कैसा बैलेंस रखना चाहिए, क्योंकि प्रेगनेंसी एक अलग स्तर पे आपको लेके जाती है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। So वैसे ही ये water is also, as we told you, the water is very important because water actually is your cushioning effect वो देता है। Next slide. जैसे डायबिटीज होता है तो इंसुलिन रेजिस्टेंस भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट स्लाइड। Now thyroid is a very important hormone which everybody keeps on asking me in the practice, डॉक्टर थायराइड के लिए हमको कितनी बार टेस्ट करना चाहिए और कौन सा थायराइड लेवल हमारे लिए अच्छा है, कौन सा थायराइड लेवल हमारे लिए अच्छा नहीं है। नॉर्मल पेशेंट्स को थायराइड लेवल्स अलग कट ऑफ्स होते हैं, प्रेग्नेंट पेशेंट को थायराइड लेवल्स के कट ऑफ्स अलग होते हैं। नॉर्मल पेशेंट को 5 से नीचे हो तो ठीक है, बट प्रेग्नेंट पेशेंट को हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर, ये 3 ट्राइमेस्टर में अलग कट ऑफ्स थायराइड के रखते हैं। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में 2.5 तक चाहिए, सेकंड ट्राइमेस्टर 3 तक चाहिए एंड थर्ड ट्राइमेस्टर 2.5 तक चाहिए, उसके आगे नहीं होना चाहिए। बिकॉज थायराइड आपका बॉडी का पूरा मेंटेनेंस करता है और थायराइड हार्मोन जितना करेक्ट लेवल पे रखोगे उतना पेशेंट बच्चे का डेवलपमेंट अच्छी तरह से हो जाता है। नेक्स्ट स्लाइड। वैसे ही लिवर इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। लिवर सबसे इंपॉर्टेंट है व्हेनेवर देयर इज एक्चुअली ब्लड प्रेशर ज्यादा वगैरह होता है, तब लीवर का इंपॉर्टेंस ज्यादा होता है और इसीलिए, और ये कभी जॉन्डिस विंडिस होता है तभी भी हम लीवर फंक्शन टेस्ट पे ज्यादा भरोसा रखते हैं, क्योंकि लीवर ये तुम्हारा मेन फैक्ट्री है बॉडी का, तो उसको अच्छी तरह से रखना या समझना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। गॉल ब्लैडर अगेन सेम थिंग। गॉल ब्लैडर भी जैसे जैसे तुम्हारा यूट्रस बढ़ जाता है वैसे वैसे वो कंप्रेस हो सकता है और इम्पेयर्ड फंक्शन हो सकता है, उसके कॉन्ट्रैक्शन बदल सकते हैं। और गॉल ब्लैडर अगर आपको अच्छा नहीं चला आपका तो आपको डाइजेशन में बहुत प्रॉब्लम आता है। नेक्स्ट स्लाइड। सो ये सब फिजियोलॉजिकल चेंजेस, अभी जैसे हमने बोला वैसे बहुत सारी चीजें अपनी बॉडी की पूरी चेंज हो जाती है और ये सब चीजों का बैलेंस रखना प्रेगनेंसी में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट स्लाइड। सो स्किन के भी चेंजेस होते हैं। वी नो दैट वो मार्क्स आते हैं, वो स्ट्रेच मार्क्स आते हैं, कालापन पड़ता है, ये सब चीजें प्रेगनेंसी में होती है। बट प्रेगनेंसी जाने के बाद में ये सब चीजें नॉर्मल भी हो सकती है, कुछ चीजें वैसे रहती है बट उसका सीवियरिटी कम हो जाता है। नेक्स्ट स्लाइड। सो ये स्किन चेंजेस को उसी टाइम में आपने अगर प्रेगनेंसी में ख्याल रखा तो ये थोड़ा कम हो सकता है, जैसे मॉइस्चराइजर लगाओ या स्ट्रेचनिंग क्रीम लगाओ, कि जैसे स्ट्रेचिंग इफेक्ट आता है तो ईचिंग हो सकता है, तो वो आप सूदन रख सकते हो उसको ऑयल या मसाज करके, या सिंपली आप वो स्ट्रेचनिंग जैसे क्रीम विटामिन ई ऑयल वगैरह होते हैं वो कर सकते हो। नेक्स्ट स्लाइड। सो सेम मेलास्मा इज अगेन पिगमेंटेशन है, तो बहुत सारे पेशेंट को जैसे बटरफ्लाई पिगमेंटेशन आता है तो पेशेंट बहुत ये करते हैं, तो उसको स्किन सन एक्सपोजर कम करना चाहिए, मास्क लगाना चाहिए या क्रीम लगाना चाहिए, ये सब चीजें कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। ये फिजियोलॉजिकल चेंजेस हैं। सो दिस इज स्ट्रेच मार्क्स, हाउ इट हैपेंस इन केस अगर सपोज ये ऐसे हो भी जाता है तो यू हैव अ plastic surgery or you can have a laser surgery later on to come out, take it out all these scars, but that time these are the changes, we should not get scared, डॉक्टर ये मेरे को ज्यादा ही कुछ हो रहा है क्या, ऐसे नहीं। जिसकी स्ट्रेचेबिलिटी कम है उसको स्ट्रेच मार्क्स ज्यादा आते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। सो द सेम थिंग। नेक्स्ट स्लाइड। So hyperpigmentation, the same thing I said, because it will be darkening your skin. Now the breast changes. Very importantly, breast is the important thing which you have to start looking at very carefully, start preparing, take care of the breast. You should wear a very loose, comfortable bra.
so that your breast will get supported properly, because breast is also started getting prepared. Your nipple should be larger, it should be maybe darker. Look at the nipple care. You should not be making keeping it dirty, but you should be keeping it very clean, because this is the source of your lactation later on. Next slide. So this is your joints relaxation that I told you in the relaxin hormone. Next slide. So pelvic floor functions, that's how we tell them to start getting the exercises. Like pelvic floor muscles, aapko function karna zaruri hai. So we give many a times patients exercise like, sitting in the squatting position, sitting with the folded legs. These all things will enhance your muscle power. And whenever you go for the delivery or normal labor, these all will make you, help you to enhance your capacity of that time to go for the labor or the normal delivery. Next slide, please. Even for your episiotomy also. So next slide. So this is how we give, the exercises during the pregnancy, small exercises. We are not giving them the very harsh exercises, but keeping your muscles moving or muscles should be active is very important, especially for the delivery, at the time of delivery. Next slide. So postural changes are very important. Like you're sitting, take some pillow because you are naturally having a lordosis. You see the curve. So because of that curve, consistently your muscles are getting strained. So we always tell, keep a pillow behind your back, or whenever you're sleeping, don't make that remain hollow. So keep it something in between. So you will feel that relaxing, or your back will be getting supported. Next slide. So this is how the stretching will affect, and it will be helping if you start getting exercises. Next slide. So same thing, I have told you this, neurological changes also will happen. And you know that, sensory nerve system will also start changing, because this is very important, especially when it activates at the time of labor. You start getting that pain, and that is the only pain which we want actually. That's called labor pains. So this all labor pains is because your neurological system, sensory system is active. Right? So this is how we see the whole pregnancy. We have the changes in the body, and we have to start getting prepared for the childbirth. We all usually say that nowadays we are having more cesarean section, we're not having normal deliveries more. So all those things are basically because of your lifestyle. You are not understanding your sedentary lifestyle. How many times we have been taking care of your body, the preparation of the body is very, very important. So unless you prepare yourself in this 9 months, that 9 months care is very important. That's how we always categorize our pregnant patient into low risk patient and a high risk patient. Like when a patient has a high risk, like she has a diabetes, she has a hypertension, she's more than 35 or 40 years of age, those categories will be complete. Or patient is having a IVF treatment has undergone, those patients will be totally different. We will not categorize them in the low risk patient, but majority of the patients have a low risk, their natural conception. So they will start understanding the changes. Once they understand the changes, they will start preparing their body. And if they prepare their body naturally, you will go into a natural birth or the normal delivery more easily than what you are been expecting. But we need to change our attitude. We need to change our lookout. The delivery is not the step where everything is going to happen. It is a preparation which is going to help at the time of delivery to have a normal delivery or a cesarean. Your mindset is very important. Are you ready to take those kind of a pains? Are you ready to deliver your baby to having that kind of a pain? That all will tell you whether you will be going for this way or that way. So thank you very much, Hare Krishna to all, and I'm open for the questions. Thank you so much, ma'am. It was really a wonderful session and very informative. And so yes, let us quickly move on to Q&A round. And so ma'am, like while we were doing the social media promotion,
we received some questions. So putting it across to you, ma'am. So our first question is from Meera from Nagpur. She is more concerned about her heavy menstrual bleeding. So Meera Okay. asks, what are the common causes of heavy periods and when should I seek medical help? Yeah. See, heavy menstrual bleeding nowadays it is called abnormal uterine bleeding. You know, whenever you are 3 to 4 days you bleed, that is a normal bleeding. And when the heavy, the or heavy called uterine bleeding, there could be two factors. Either you have a structural defects or you have non-structural defects. According to FIGO classification, like our guideline says, first you should look out the structural abnormalities, like whether your uterus has got a tumor outside, or whether your uterus has double uterus, or uterus has some other problems in the uterine cavity. All those factors should be seen first. So sonography will tell you first, very important, very easy it is to do whether you have any problem to do with your structure. Now, if the problem is with the structure, suppose you are a heavy menstrual bleeding, but you have a polyp inside, or there is a tumor inside the uterine cavity, remove that and all your problems will get solved. So structure should be first seen. Now, second part is a non-structure, where hormonal imbalance is a very, very important factor which has to be looked at. Whenever you suppose you have been at 40 years of age, perimenopausal, your hormones will start getting a very haphazard way of their density. And that's how you will start getting these all changes in your menstrual blood flow. And then you start giving the hormonal treatment to the patient, everything will get covered in that. Now, third one is if you have hyperplasia or precancerous condition in the uterine cavity, when especially you are crossed 45 or 50 years of age, you have to go to a gynecologist, look at that endometrium, take the biopsy of the endometrium and see what is the problem, why you have been bleeding, is there any problem needed to be urgently seen. So that is very important. And the last one is if suppose you are 50 years and above and you are heavy menstrual bleeding, probably cancer. Malignancy is one of the cause for the, and then you have to go for the sonography, CT scan or MRI, seek your gynecologist opinion, and then she will. But if commonly 80% of the patients has a hormonal disturbance, and with the tablets, it can get solved and everything will go into a place. But you need to go for a gynecologist opinion to know whether you have structural abnormality or you have non-structural abnormality. Thank you. Yes, ma'am. So our next question is like, there is one lady, she hasn't given a name. So her question is from Bangalore. This lady delivered the kid in 2016, she has mentioned, but it was not known to her and she was still producing milk till 2020. So after 2 years, like because of this pandemic, she did not pay attention. There was no abnormality that was visible in her breast area. And suddenly the doctor had found out like it is granular mastitis or something like that. So now she's asking like, are there any chances of it reoccurring or something like that? No, not really. It's a good question actually, because many of them actually faces this problem. We don't even know exactly when the lactation should be stopped or how it is to be taking care of your own breast, and they keep on feeding for a long time, and these all problems can come up. So I think it will not repeat what she's been saying. Whether it will be repeating, it will not. You have been actually gone proper doctor. If at all it is possible for you and if it is available in your city, lactational consultant would be a very good option for you. Please go and seek the lactational consultant, because they not only look at the feeding part of it, but they look at the breast health as such for your future also. So I think lactational consultant would be the right choice for her.
Okay, so doctor, I have two more questions for you. And this question has come from Ritu, who recently gave birth and is curious about the precautions she should take postpartum. Like Ritu asked, what are some important precautions I should follow after giving birth to ensure a smooth recovery? Yeah, postpartum care is another area where now WHO is focusing, because what happens till then you are one person, and after the delivery it becomes one more baby in your life, and the baby doesn't speak. You have to just judge the things what is happening, and that's how postnatally patients usually career oriented and all those women demanding phase it is, and they go into a depression, nervousness at that time. So postnatal care of a woman is very important. You have to be positive about it. This is going to, you are into the creation phase. So how to the baby is completely your different mind setup should be there in your mind. And I think it should maybe for years time you can, it is for you 6 months to years time you can have a lot like breastfeed the child, and look after your own health in the sense you start looking at your body fitness during the same time, because you have gained weight, there is a laxity in your body, all those things has to be regained again back. So start taking care, maybe the exercises, or maybe even vaginal also, many a time postnatally they start urine leak, which they don't even understand why this has been leaking now, why I'm feeling very loose in the vagina. It is not the tightness like before. And that is natural. As I told you, the whole lot of changes, that all changes together will make your vaginal thing, even if it is normal delivery, even if it is cesarean also, changes are going to happen. They are going to be there. So you are going to feel that looseness. So you have now laser options, laser treatment called Lift. You can tighten the vagina. Those all things you can take care. You can start Kegels exercises after the delivery, so that will strengthen your especially inner muscles like genital area muscles, and that you take care of your breast health also. And in general, you be mentally fit. You start, even if you're looking after your child, you start looking at your own interest also, little bit reading and doing something different what you have been liking before. Keep doing that. That all will take care of your postnatal period. Great. And doctor, this is the last question from Pune. And Simran is her name. She is interested in understanding the precautions to be taken while breastfeeding. Feeding. So Simran asks, are there any specific precaution I should follow while breastfeeding to ensure the well-being of my baby? Yes, very, very important, very, very pertinent it is. Your breastfeeding is something, a blessing to the child as well as to you also. It will give a connection, a strong connection between you and your child. So whenever you have been breastfeeding, you be alert. You should not be sleeping and feeding, or you should not be angry and you have been feeding. Whenever you're feeding, you should be very happy. You're giving feed to a child. Whenever we feed somebody, do you think that while sleeping we feed somebody? We can't. So whenever you're sleeping and feeding, please change that, because many a times it may choke the baby's mouth. We don't even realize that the pressure of the breast and these all things, posture will make a lot of changes. So please be awake and you feed in a very proper lighted room and properly setting posture wise, and feed. Whenever you're feeding, start caressing your child, taking your hand on the head. That will make a different bond between you and the child. Now, very importantly, when you take care and feed, the baby's brain development is very different. It is being scientifically proved that the babies who are breastfeed with compassion has lot of emotional stability in their later childhood. So that's very important. So very caressing at the time of breastfeeding is lot of difference. So take care of that. Feed child,
enjoy that feeding. And in case of, suppose you're not able to give much time, I think they express the milk and then feed, but don't lose that opportunity of giving the child breast milk, because breast milk gives the immunity. That immunity, I always say, not gold, diamond, but platinum it is. And that is what you are giving for his whole life later on. So be a good mother and enjoy that motherhood also, including your breastfeeding. So thank you. Great. So thank you so much, ma'am. It was a great session with you, and a small announcement for the audience here. So I'm sure you would have enjoyed the session a lot. It was worth listening and knowing your own self. So should you wish to meet Dr. Bharati Dhorepatil, please call the given number that Vaishali would be putting it across in the chat box. And you can also book online appointment, right, with Dr. Bharati Dhorepatil. And secondly, you will also find 3 packages on the site, that is on the website of Medictrl. We are posting the link of the health checkup package as well. Please go ahead, explore. It's really value for money, right? And lastly, we are also coming up with health camp next Saturday, that is June 10th from 10 a.m. onward at Medictrl Hospital, Omkar Society, Vishal Nagar, Pune, Maharashtra. So please go there, consult doctor. The general physicians also will be there. The general surgeon also will be there. So, all right. So with this, we have come to an end of this webinar. And I once again thank Dr. Bharati Dhorepatil for taking out her time and sharing her valuable insights with us. Thank you so much and have a great evening ahead. Thank you, doctor.